नमस्कार सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामेश्वर। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई होप you all are fine. And once again we are here with class for environmental studies, and in this video we are going to see the new chapter, that is changing times. And from the name of the lesson, changing times, you are getting the lesson is about the how the changes occur in the life of a person. So for that I have one quotation that I like: nothing ever stays the same. Nothing ever stays the same. Be happy no matter what happens, because change is a big part of life. So children, we should keep it in mind. The change is the part of our life and we have to accept it. Whatever the change, we just accept it and make our growth and progress ourselves. देखो, बदलाव इस जीवन का ही क्या है, नियम है, और उस बदलाव को हमें स्वीकार करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर के माध्यम से वी आर गोइंग टू सी हाउ द चेंजेस ऑकर इन द फैमिली ऑफ चेतन दास, हाउ द चेंजेस ऑकर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, what kind of tools used in past and in today's life. So let's see the content of the lesson. What are the important points we are going to discuss through this chapter? Number one, that is British rule over India for about 200 years from 1858 to 1947. Relocation to India, the story of a family, means how the people travel or migrate from one place to another place. एक जगह से दूसरी जगह जाकर वहाँ पे खुद को स्थापित करना, वहाँ पे खुद के अपना नया घर बसाना. So how they do. Partition of India, that is divided. The India was divided into two parts. The firstly in 1947, that is India and Pakistan, and again that Pakistan was divided into Bangladesh, that is in 1971. Location of India and Pakistan in the map. Types of houses over a period of 2-3 generations, जो अलग अलग houses के बारे में भी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, and along with that the how the changes occur in the houses from 2-3 generation. So these are the important points of this chapter. So all these points we are going to study through this lesson. So these are the content of our lesson. Now let's see home builders and their tools. How the builders or the people those are helping in constructing the houses, or we can say that the helpers to construct the house, as well as the different tools used by the people for constructing the houses. ठीक है, so these are the important points of this chapter. Let's see what we should get after the completion of this chapter, the objectives of the lesson. Number one, to enable pupils to know about the partition of India. Then to understand the relocation and its difficulties, to know about the different types of houses and housing material have changed with years, to know the shelter is a basic need of living thing, to relate types of houses to places, to know the personal and the tool used in the building. So these are the objectives of this chapter. Means आपको ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को
this point should be understood. Number one, that is to know the partition of India. Partition, that is separation. ठीक है, या इंडिया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस के पहले जो इंडिया था इट वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, है ना, अंग्रेजों के अंडर था, है ना, मीन्स अंग्रेज हमारे देश पर क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, ठीक है. सो दैट इज द सेपरेशन ऑफ इंडिया. टू अंडरस्टैंड द रिलोकेशन, रिलोकेशन मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह पर जब माइग्रेट होते हैं तो वहाँ पर अपना नया घर बसाना. सो दैट इज रिलोकेशन. एंड डिफिकल्टीज, कौन कौन सी डिफिकल्टीज समस्याएं आई उनके जीवन में, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल रिलोकेटेड और माइग्रेटेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है. टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, सो यू लर्न इन द class 2, class 3 also different types of houses, mud houses, kacha houses, pakka houses, like this, yeah? And different housing material, कौन कौन सा हाउसिंग मटेरियल यूज होता है और जिस तरह से ईयर बढ़ते जा रहे हैं और नया नया साल में इसका अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, नए नए मटेरियल यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए. देन टू नो द शेल्टर, शेल्टर इज नथिंग बट होम. You all know the basic needs of human beings are, that is basic needs of human beings are food, clothes and shelter, ठीक है. ये बेसिक नीड्स है, उसमें से शेल्टर दैट इज अ होम. टू रिलेट टाइप्स ऑफ हाउसेस टू प्लेसेस, पीपल एंड बिल्डिंग मटेरियल्स. एंड टू नो द पर्सनल एंड द टूल यूज इन द बिल्डिंग, मीन्स डिफरेंट हेल्पर्स. अबाउट दैट हेल्पर्स ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है. सो ऑल दिस पॉइंट शुड बी क्लियर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है. सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर. Now see, you are getting this picture. So British rule in India. तो हमारे देश पर लगभग 200 साल, you can say that 1858 से लेकर 1947 तक, near about 200 years these Britishers rule over India. जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, अंग्रेज भारत में आए, तब देयर मेन जो मकसद था, दे कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, व्यापार करने के मकसद से आए थे. बट दे सॉ दैट इन इंडिया, द इंडिया वाज सोने की चिड़िया, जैसे कह सकते हैं हम कि भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था. एक बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री था भारत उस वक्त, ठीक है. सो दे सॉ दैट वी कैन रूल ओवर दिस कंट्री एंड देन दे रूल ओवर द इंडिया फॉर 200 years. And for getting the independence from these Britishers, so lot of legendary people, lot of legends of our India, or great personalities, they fought for getting the independence, like as one of that is Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Lokmanya Tilak, Jhansi Ki Rani. So all these great personalities, they fought against with these Britishers by using the different methods, ठीक है. तो इन सभी ग्रेट पर्सनालिटीज ने ब्रिटिशर्स के साथ क्या किया, लड़ाई की. एंड देन ऑन 15th of August 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया गॉट फ्रीडम, ठीक है. 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया, ठीक है. सो ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया फॉर 200. नाउ सी, दिस इज द करंट मैप ऑफ इंडिया. देखो इस करंट मैप में आपको दिखाई दे रहा है कि ये
हमारा करंट मैप है इंडिया का, और ये नेबरिंग कंट्री दैट इज पाकिस्तान जो कि सेपरेटेड है ना, और ये बांग्लादेश। ये आज के डेट वाला मैप है, दैट इज 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है इसमें, है ना। सो दिस इज द करंट अपडेटेड मैप ऑफ अवर इंडिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये तो आज के डेट का है। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब क्या कंडीशन थी मैप की। सो पार्टीशन ऑफ इंडिया। सो जब भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो मैप ऑफ इंडिया जस्ट लुक लाइक दिस। ये पूरा जो मैप था, दिस इज द मैप ऑफ अवर इंडिया, एंड पूरा पार्ट जो है इंडिया कहलाता था। ठीक है, बट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जैसे ही इन 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत देश का पार्टीशन हुआ, डिवीजन हुआ, सेपरेशन हुआ। सो इंडिया लुक्स लाइक दैट, द इंडिया पार्टीशन इनटू टू, दिस इज वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, और ये जो नेबरिंग कंट्री दैट इज बर्मा, इससे आज हम म्यांमार कहते हैं, ये ईस्ट पाकिस्तान, ये सीलोन दैट इज द श्रीलंका। ठीक है, सो दिस इज आवर इंडिया। जब पार्टीशन हुआ तो इस तरह से ये जो पाकिस्तान था ये पूरा अलग हो गया। अभी जो ईस्टर्न साइड में ये भी पाकिस्तान का हिस्सा था, इसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। ठीक है, तो दिस इज द मैप ऑफ पार्टीशन of India. Now see, in this picture you will get the clear cut idea of map of India. Now in first picture you are getting that this is the before 1947, the political map of India, it's look like that. ये 1947 के पहला वाला मैप है जिसमें पूरा इंडिया पाकिस्तान मिक्स दिखाई गया। ठीक है, आफ्टर पार्टीशन के बाद ये जो ब्राउन पार्ट दिख रहा है, इट इज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, अब लेकिन फिर आगे क्या हुआ, अगेन इन 1971 द पाकिस्तान इज सेपरेटेड इनटू, जो पाकिस्तान जो था इसमें से जो ईस्ट पाकिस्तान है वो सेपरेट हुआ एंड इट फॉर्म्स द बांग्लादेश। उसे बांग्लादेश के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इन 1971 कब हुआ है, 1971। ठीक है, सो यू विल गेट द क्लियर कट आइडिया मीन्स हाउ द मैप ऑफ इंडिया चेंजेस। ठीक है, सो बिफोर 1947 द मैप लुक लाइक इस तरह से दिख रहा था, एंड आफ्टर 1947 जब पार्टीशन हुआ तब इस तरह से अलग हो गए, और जब फिर से पाकिस्तान का पार्टीशन होके ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया, वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है आज। ठीक है, तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान का क्या था तब, हिस्सा था। सो मूविंग टू मदरलैंड, सो व्हाट हैपन्स जब ये सब हो रहा था, जब पार्टीशन हुआ, so millions of people they migrated from one country to other country. Lot of difficulties they face. They lost their property का loss हुआ उनके। इतना ही नहीं, they have to leave the land, home and nothing but all these things. Along with that, some of the people they lost their life also, so millions of people they migrate एक जगह से दूसरे देश में, क्योंकि उस वक्त ये कहा गया था कि जैसे जिन लोगों को पाकिस्तान में रहना हो पाकिस्तान जा सकते हैं, और जिन लोगों को इंडिया आना है वो इंडिया आ सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, those are interested to live in Pakistan, they can live in Pakistan. Those are interested to live in India, they live in the India. So what happened, so lot of people they move from one place to another place, they migrated. तो इन सब में क्या होगा, उनकी जो प्रॉपर्टी उनको छोड़ना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा, ज़मीन छोड़नी पड़ी। इतना ही नहीं तो बहुत सारे लोगों को अपना प्राण भी त्यागना पड़ा उस वक्त। ठीक है,
सो मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें क्या होगा कि जो मुस्लिम बेस्ड कंट्रीज थी दे स्टे इन द पाकिस्तान एंड सिख एंड हिंदूज दे कम टू इंडिया. ठीक है. सो दिस आर द difficulties faced by the people during this migration. So these people in this picture we are getting that the peoples are migrating from one country to another. ठीक है. इस पिक्चर में आपको समझ में आ रहा है किस तरह से उनको पूरा जो भी अपने उनकी ज़रूरतमंद चीज़ें सब लेके वहाँ से छोड़ना पड़ा उस देश को. So in this video what we have studied, so how the British rule over India for 200 years from 1858 to 1947. The concept of partition, that is separation or division. Then India got freedom on 15 August 1947. भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 15 अगस्त 1947 को. इसीलिए हम जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं बच्चों. On 15 August 1947 वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान वेयर पार्टीशन. ठीक है. जो 47 को क्या हुआ, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान इस तरह से पार्टीशन हो गए, इंडिया से अलग हो गए. अगेन 1971 को क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फॉर्म. कब हुआ हो? 1971. सो ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान पीपल एंड द पाकिस्तान India and Pakistan, people of these two countries suffer. They face lot of problems and changes during the partition. बहुत सारे लोग इसमें अपना सब कुछ खो दिए, लैंड, ज़मीन, फिर पैसा, है ना. इतना ही नहीं तो अपनी लाइफ भी बहुत सारे लोग इसमें सेक्रीफाइस कर गए या खो अपनी जीवन उनको वहाँ पे छोड़ देना पड़ा. ठीक है. सो ऑल दिस changes occur, all these difficulties faced by the people at the time of partition of India. I hope you all understood up to this. This is the first part of the video of changing time. If you like this video, please like, share and comment. Thank you so much.